اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور قربی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خدا مد یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے لیے ممکن کیا کہ ہم اکٹھے ہوں اور ایک کلیسیا تیرے بیٹے یسوع کا بدن ہوتے ہوئے اکٹھے مل کر تیری عبادت کر سکیں۔ خدا ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے، اور خدا ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں تو ان کے پاس بھی موجود ہے۔ خدا اپنی حضوری سے ہم سب کو جو تیری حضوری میں ہیں ان کو برکت دے۔ خدا ہمیں چھو اور ایمان میں مضبوط کر۔ خدا پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں اور تیری رہنمائی مانگتے ہیں، تاکہ آج کی عبادت سے ہم یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خدا پاک روح، تو ہمیں معمور اور مسا کر اپنی آگ سے بھر دے، اپنی آگ سے دھو کر پاک ٹھہرا دے، تاکہ آج کی عبادت ہم سب کے لیے برکت اور خوشی اور اطمینان اور تسلی کا باعث ہو۔ خدا مدد جتنے لوگ اس عبادت میں کسی پریشانی، بیماری یا فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں، خدا مدد اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان، ایمان کی مضبوطی اور معجزے پائیں۔ خدا تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، جو لوگ ابھی آ رہے ہیں انہیں خیریت سے یہاں پر پہنچا، اور خدا دعا کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، اور خدا ہماری حفاظت کر، ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگ جائیں۔ خدا پاک تو ہماری مدد کر تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو سکیں۔ خدا آج پوری دنیا میں جہاں بھی تیری عبادت ہو، خدا تو اپنے لوگوں کی حفاظت کر، انہیں شر پسند عناصر کے حملوں سے، دہشت گردی سے، پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھ۔ تیرے لوگ برکت پائیں، ایمان میں مضبوط رہیں، اور جہاں پر بھی عبادت ہو اور تیرے کلام کو پیش کیا جائے، کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اور صرف یسوع کا نام ہی سربلند اور اونچا ہو۔ خدا تو ہم سب کے خیال اور دھیان اپنی طرف لگا، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا کا مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 96 گائیں گے۔ پہلا حصہ، آؤ ایک نواں گیت رب نے گاؤ۔ زبور نمبر 96، زبور نمبر 96، پہلا حصہ۔ تشریف رکھیں۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں ایلڈر سلیم صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم خدا کا شکر کریں گے کہ اس نے فضل کیا اور ہمارے لیے ممکن کیا کہ آج ہم اس کے مقدس دن میں اکٹھے ہو سکیں اور صحت مندی کی حالت میں یہاں پر خدا کی حضوری میں آ سکیں۔ ہم خدا کا شکر کریں گے اس جگہ کے لیے اور ایف سی کالج کے لیے بھی دعا کریں گے خدا مند ایف سی کالج کو برکت دے۔ ایف سی کالج کو چلانے والے تمام انتظامی افسران، فیکلٹی،
स्टाफ यहाँ पर काम करते उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपनी कलीसिया की दुआ करेंगे, खुदा हमारी कलीसिया को ईमान में मजबूत करे, जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। और हम पूरे दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरी दुनिया में मसीहों को बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और ज़िंदा कलीसिया बनाए। और इसी तरह से पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, और हम अपने मुल्क पाकिस्तान में भी अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और अहद सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। रोज़ बाप बड़ी आज़ी और खूबी खाकसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी दी हुई नेमतों बरत और बख्शिशों की खुदाम लाजम के लिए हम बहुत सारे लोगों से अच्छे ना थे जो दिन को देखना चाहते थे, देख ना सके। ये खास तेरी मेहरबानी है जिंदों की ज़मीन पर रखा है, और ये फजल बख्शा के खुदाम हमने ख़ानदान की हैसियत से, जमात की हैसियत से मिलकर खुदाम तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रशिश कर सके। जितने खुदाम तेरे लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र, जो विरासत में बाफाजत ताकि सब मिलकर खुशी के साथ खुदाम तेरी इबादत करें, तेरी प्रशिश करें। खुदाम जो कुछ तेरी हमद और साज के लिए गाया बजाया जाए वो ईमान से बोल, तेरे ज़िंदगी वक्त कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तेरे खादम के वसीले से, जिसके वसीले से खुदा तू अपनी कलीसिया की रूहानी खुराक को शेर और रसूदा करने वाले खुदा तू अपने खादम को अपने पाक रूह की मामूली से ममूर कर, ताकि खुदा वो कलाम जो तेरे पाक रूह की तहरीर किया गया खुदा तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से तेरी कलीसिया की रूहानी खुराक को, और खुदा अपनी कलीसिया को भी सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल बख्श, ताकि मैं सुनने वाले न बल्कि इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में रखें और अपनी ज़िंदगियों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सुबह। आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया खुदा तेरे लोग तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं, खुदा तू अपनी कलीसिया को हर किस्म की दहशत गर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, ताकि खुदा तेरे लोग खुशी के साथ, आज़ादी के साथ खुदा तेरी इबादत करें, तेरी प्रशिश करें, और खुदा अपने कामों से, अपनी ज़िंदगियों से तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का। हम अपनी कमज़ोरियों का, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। गुनहगार, बहुत गुनहगार इस लायक नहीं कि तेरे पास आ सके, तेरे इकलौते बेटे के फजल के वसीले से, जिसने हमारा फिदिया दिया, जिसने हमारी खातर अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया, और हमको ये फजल बख्शा, हक बख्शा कि हम तुझे पाक कहकर पुकार सकते हैं, तेरे पास आ सकते हैं, और तेरे पास आकर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी मनाजातों को, इल्तिजाम को तेरे हुजूर गुज़रान सकते हैं। अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए तेरे लिए मिन्नत करते हैं। तू हमारे मुल्क में अमन ईमान, सलामती, इस्तेकाम को कायम कर। मुल्क के खुनानों को कलो दानाई फैम दे, जो मुल्क की मसाइल पर काबू पाने के लिए बड़ा फजल दे। नामदार से कॉलेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों ने इस अदारे को इसलिए कायम किया कि इस अदारे के वसीले से तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा तू इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इनके आला अफसरान को, खुदा तमाम जूनियर सीनियर स्टाफ को जो इसमें काम करते हैं, खुदा सबको हिकमत दानाई से भर, अपनी मोहब्बत से भर, अपने खौफ से भर, और फजल बख्ता के खुदा वो अपने अपने काम को जी जान के करे कि खुदा तेरे लिए करते हैं, और इस अदारे की तरक्की के लिए अपना आम रोल अदा करेगा। खुदा तो इस अदारे को और अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदा तेरा नाम सार खुदा इस अदारे के वसीले से खुदा ऐसी कॉली कलीसिया के लिए खुदा तेरे के मिन्नत करते हैं, इनको पहाड़ का शहर बना दो, अपना नूर बख्शे, ताकि ये तेरे रूह की रोशनी दुनिया की इंतहा तक पहुँचाने का शुरू हो। खुदा तू हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे, सरबलंद कर। तेरे खादम के लिए, इसके घर के लिए, इसके घराने के लिए खुदा तेरी बरकत और तेरी सलामती को मान। तू अपने खादों को बड़ी बरकत दे रखी है खुदा, और अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, अपने बरकतों से माला माल कर, ताकि खुदा सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को।
आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते, तूने अपनी कलीसिया को ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, अंजील की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का शुक्र। खुदा तू अपनी कलीसिया को बड़ा फजल दे के इस काम को बड़ी जान के साथ सर अंजाम दे, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की गवाही पहुँचे। तेरा जल्द दुनिया में तमाम मसीह कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान है, जंगो जदर में, अजाब खाने में, पस्त में, बेरोजगारी की हालत में, खुदा तू अपनी कौम को सरबलंद कर, सरफराज कर, हिकमत से बार, दानाई से बार, ईमान में मजबूत कर। जिस तरह तूने अपनी कौम बन इसराइल को बरकत दी है, सरफराजी दी है, सरबलंद किया, खुदा वही तेरी बरकत तेरी कलीसिया पर, तेरे लोगों पर खुदा कसरत से मांगते। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूप कसरत से नाज़िल कर। खुदा हमारी दुआ को सुन कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदा यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 103 गाएंगे। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। ज़बूर नंबर 103 दूसरा हिस्सा, ज़बूर 103, और उसका हम 9वें मिसरे से लेकर 15वें मिसरे तक जाएंगे, क्योंकि जानता है साड़ी आप बनावट सारी, यहाँ तक हम गाएंगे। ज़बूर नंबर 103 दूसरा हिस्सा, दूसरा वजन।
ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं, और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार मुतफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए, और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त किया कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें खुदा की हजूरी में लेकर आएँ और उनके लिए शिफाया दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। और तेरे कलाम में ये लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाए। तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु के नाम के लिए जिसमें कुदरत और फतह है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए जिसमें शिफा है। और हम ये ईमान रखते हैं खुदावंद के जब हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं तो तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से तेरी कुदरत हमारी जिंदगी में जाहिर हो। तेरा फजल हो खुदावंद, तू छू और बरकत दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत पाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से हम बरकत पाएं। खुदावंद तू हमारी हिफाजत और निगहबानी कर, तू छू और बरकत दे, तू हिफाजत कर। और खुदावंद तू हमारे साथ हो। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं और खत्म करते हैं। खुदावंद तू हमारे जिस्मों को आज़ाद कर, हर किस्म के बंधनों से रहाई दे। और इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। हम मुतफिक होते हैं और एक दिल होकर खुदावंद सबके लिए शिफा मांगते हैं। खासतौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस रोज़ी बशीर के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए, बेटी मारिया के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई अगस्टीन के लिए, भाई प्रोवेज यूसुफ के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, और भी जितने लोग जो इस वक्त बीमारी की हालत में, सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। तेरा मुआवजा हर एक के लिए मांगते हैं। तो सभी को छू, जितने शुगर पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, खुदावंद तुम सबको छू और शिफा दे। यीशु के नाम से खुदावंद सभी शिफा पाएं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से हर एक बीमारी हमारे जिस्म से चली जाए। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए यीशु के नाम से बरकत मांगते हैं। तेरी बरकत, तेरी मेरास उनके लिए मांगते हैं। खुदावंद हमारा ईमान है, पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। इसलिए खुदावंद दुआ करते हैं तो हर एक को छू और उन्हें औलाद की नेमत बख्श दे। तेरी तरफ से उनकी जिंदगी में मौजज़ा हो। खुदावंद हमें कोरोना से और वबाओं से और बीमारियों से बचाए रख। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अब एक ज़रूरी ऐलानात है। मैंने गुज़श्ता इतवार भी ऐलान किया और इस इतवार फिर से याद दहानी के तौर पर बता रहे हैं कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन मूवमेंट है, शायद दाऊद इधर है, स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट जो है उनका कैंप 2 अगस्त से 5 अगस्त तक खासपुर यूबिया में जा रहा है। और इसमें जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालबात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत मौका है हमारे क्रिश्चियन बच्चों के लिए कि वो आपस में राब्ते में रह सकते हैं और खुदा के कलाम को भी इकट्ठे सीख सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में भी है। और पाकिस्तान में उसके ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो दाऊद अब्दिया हैं, वो हमारे चर्च में हमारे साथ शामिल होते हैं इबादत में। हम पूरा शुक्र करते हैं उनकी इस खिदमत के लिए। और उन्होंने इस के लिए दरख्वास्त की कि कलीसिया में ज़रूर इसको अनाउंस किया जाए ताकि अगर आप में से कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो वो 5 दिन के लिए खासपुर यूबिया में के साथ जा सकता है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 4500 है, 4500 है, जिसमें रहाइश भी है, खाना भी है और आने जाने का अखराजात जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अगर आप में से कोई जाना चाहता है या आपके दोस्त कोई जाना चाहते हैं
तो उसके लिए ज़रूर मुझे बता सकते हैं। दाऊद अब्दिया यहाँ पर इबादत के बाद मौजूद होते हैं। दाऊद अब्दिया ज़रा खड़े होकर ज़रा चेहरा दिखा दें ताकि लोग देख लें आपको। ये दाऊद अब्दिया हैं, इनको भी आप बता सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, और मैं भी इनको आगाह कर सकता हूँ ताकि जो लोग शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो करवा सकें। आज एक बपतिस्मे की रस्म भी है, अगर वो आगे हैं। भाई इमर तालब के बेटा अभी नहीं आए, चले हम फिर गीत गाते हैं। खुदा के कलाम को सुनने से पहले दिए का गीत, खुदा के कलाम को सुनने से पहले तैयारी का गीत है, गीत नंबर 338, गीत नंबर 338, रूहा रूहा रूह पाक खुदावंदा तू आ। गीत नंबर 338, गीत नंबर 338। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में ये गीत गाएंगे, और इस गीत के खत्म होने पर हम खड़े रहेंगे और खुदा के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे।
और खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। नए अहदनामे में से मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। The book of Revelation chapter 3 verses 14 to 22। नए अहदनामे में से मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत से 22वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस की तिलावत में हमारी रहनुमाई मिसेस पॉल करेंगी। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब में से बयान 3 बाब 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आयन और सच्चा और बरहक दुआ और खुदा की खलकत का मुहब्बतदार है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है न गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है न सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मुहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरे कलाम के ताबे करते हैं। खुदा पाक रूह, तू हमारी मदद कर। सुस्ती, काहली, दुनवी सोचें, ख्याल यीशु के नाम से जाते रहे। खुदा आज के कलाम से हम बरकत पाएं। मैं अपने आप को खुदा तेरे ताबे करता हूँ और तेरी रहनुमाई मांगता हूँ ताकि तेरी आवाज़ दिल लोगों तक पहुँचे, यीशु के नाम से, आमीन। हमने गुज़श्ता इतवार गलीतियों के खत की सीरीज़ को ख़त्म किया और अब कुछ देर के लिए हम कुछ ऐसे मज़मून सीखेंगे जो कि बतौर कलीसिया हमें सीखने, जानने और उनको जानकर अपनी ज़िंदगी में बतौर कलीसिया तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और हम मुकाशफा की किताब के 6 अबवाब की सीरीज़ पहले कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक हिस्से को मैंने सोचा और इसके लिए दुआ की कि खुदावंद इस हिस्से के वसीले से हमसे कलाम करे और बतौर कलीसिया हम अपने आप को उस पैमाने पर ला सकें जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसियाओं के लिए मुकर्रर किया है। ये 7 कलीसियाओं को लिखे गए खतूत में से आखिरी कलीसिया और आखिरी खत है। 7वीं कलीसिया है और 7वां खत है। और हर एक कलीसिया को जब खत लिखा गया है तो उसके इख्तिताम पर इस बात को ज़रूर शामिल किया गया है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यानी
ये खुदा की मर्जी है, खुदा का मंसूबा है कि कलीसियाएं वो बात जाने जो खुदा उनसे चाहता है। इसलिए ये खतूत ना सिर्फ 7 कलीसियाओं के लिए हैं, बल्कि ये खतूत आलमगीर कलीसिया के लिए है, मसीहों के लिए हैं, ताकि कलीसिया खुदा की मर्जी को और खुदा के मंसूबे को जान सके कि खुदा उनसे क्या चाहता है, खुदा उन्हें क्या फरमाता है और खुदा की मर्जी उसके लोगों के लिए क्या है। और इन 7 कलीसियाओं को जब हम उनके खतूत के हवाले से पढ़ते हैं तो हर कलीसिया को लिखे गए खत के आगाज के अल्फाज मिलते जुलते हैं, जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनको खतूत लिखवाए यूहन्ना से, तो ये यहाँ पर ये जरूर लिखा गया, मैं तेरे कामों को जानता हूं। यानी हर एक कलीसिया के कामों से खुदावंद यीशु मसीह वाकिफ है। खुदा देखता है, खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा कलीसिया के दरमियान है, खुदा कलीसिया के कामों को जानता है, खुदा हमारे दिलों के बातों को, सोचों को, इरादों को जानता है। इसलिए जब इन 7 कलीसियाओं को खतूत लिखे गए तो हर एक कलीसिया के खत के आगाज में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ को उनके कामों के हवाले से बताया कि इनके ये काम हैं, खूबियां ये हैं, खामियां ये हैं। लेकिन लुदीकिया की कलीसिया वह कलीसिया है जिसमें किसी भी खूबी को नहीं गिनवाया गया। हर एक कलीसिया में खूबियां हैं और साथ साथ खामियां भी हैं। 2 कलीसियां ऐसी हैं जिनमें कोई भी खामी नहीं है और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तारीफ की है, स्मुरना की कलीसिया और फिलदेल्फिया की कलीसिया। ये 2 कलीसिया ऐसी हैं जिनकी खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ की, और बाकी 5 कलीसियां ऐसी हैं जिनकी खामियां हैं, और उनमें से 4 ऐसी हैं जिनकी साथ थोड़ी थोड़ी खूबियां भी हैं। लेकिन लुदीकिया की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिनमें कोई खामी जो है, कोई खूबी जो है वो खुदा को नजर नहीं आई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके बारे में बयान किया। और उसका आगाज यीशु ने इस तरह से किया कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कलीसिया को, लुदीकिया की कलीसिया को उनके गुनाह के बारे में आगाह करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सच्चे होने का, अपने दावे के सच्चे होने का, और जो कुछ वो कह रहा है उसकी सच्चाई का दावा किया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो हकीकत पर मबनी है, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं और मैं मुस्तकबिल के बारे में भी जानता हूं, मैं हाल और माजी के बारे में भी आगाह हूं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने लुदीकिया की कलीसिया की खामियों से उन्हें आगाह करने से पहले अपना तारुफ, इंट्रोडक्शन करवाया, और वो इंट्रोडक्शन यीशु ने ये करवाया कि मैं आमीन, यानी हमेशा जो बात कहता हूं वो पूरी होती है, और सच्चा और बरहक गवाह हूं, यानी मैंने सच्चाई के साथ जो कुछ देखा है उसको कहने जा रहा हूं। और उसके बाद यहां पर लुदीकिया की कलीसिया की खामियों को बताया गया है। लुदीकिया की कलीसिया के बारे में हमें कुलुस्सियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीले से बातचीत मिलती है। कुलुस्सियों के खत के 4थे बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल ने लुदीकिया की कलीसिया का जिक्र किया, और लुदीकिया की कलीसिया के बारे में जो फिक्रमंद खुदा का खादम इपफ्रास है उसका भी जिक्र किया है। जो लुदीकिया की कलीसिया हिरापुलुस और इसी तरह से हिरापुलुस के साथ साथ कुलुस्से के करीब वाक़ थी। इसीलिए यहाँ पर 4थे बाब में कुलुस्से के खत के 16वीं आयत में ये कहा गया कि जब यह खत तुम में पढ़ लिया जाए तो उस खत तो ऐसा करना कि लुदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। यानी जो कुलुस्से की कलीसिया को खत लिखा गया, पौलुस ने कहा कि ये खत लुदीकिया की कलीसिया को भेज देना ताकि वो भी पढ़े, और जो लुदीकिया को खत लिखा गया है वो तुम भी पढ़ना, उसको अपने पास मंगवा लेना। और फिर जो खिदमत उसमें कर रहे थे लुदीकिया की कलीसिया में, उसका भी जिक्र यहाँ पर मिलता है। यानी यहाँ पर मसीही कलीसिया कायम थी और मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ राब्ते में थी, खुदा के खादमों, खुदा के शागिर्दों, रसूलों के साथ राब्ते में रहने वाली कलीसिया थी, और एक अच्छी
और खिदमत गुजार कलीसिया होगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर मुकाशवा की किताब जो है उसमें जब खुदावंद यीशु मसीह उनकी बातों को बयान करते हैं तो इसमें हमें खामियां नजर आती और उसके साथ साथ खामियों में साथ साथ उनकी जो बातें खूबियां हैं जो दुनियावी तौर पर वो समझते थे हमारी खूबियां हैं, यीशु ने उनको भी खामियां कहा है। तो मैं चंद जो लोगों के नजदीक खूबियां थी पहले उनका बयान मिलता है। 17वीं आयत में लिखा है, तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं। लुदीकिया शहर एक खुशहाल शहर था, अमीर शहर था, और कहते हैं कि 61वीं ईस्वी में जलजला आया और शहर तबाह हो गए और ये रोमी तसल्लुत में शहर था। लेकिन इस शहर ने रोमी गवर्नमेंट से मदद लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से खुद अपने शहर को तामीर करेंगे। अमीर शहर था, दौलतमंद और मालदार शहर था, लोग बड़े मालदार थे, खुशहाल थे। उन्होंने कहा हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद इस काबिल हैं कि अपने शहर को दोबारा से खड़ा कर दें। फिर उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह और आगे बढ़ते कहते हैं, ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, खार और गरीब और अंधा और नंगा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी खूबियों को उनकी खामी करार दिया है। लुदीकिया ना सिर्फ अमीर शहर था, कपड़े की प्रोडक्शन के लिए मशहूर था, आंखों के सुरमे, आंखों की दुआई के लिए मशहूर था, बैंकारी सिस्टम के लिए मशहूर था, फाइनेंशियली मुआशी तौर पर बड़ा मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड शहर था। अपने आप को बहुत अमीर शहर समझता है और अपनी दौलत, अपनी प्रोडक्शन के बायस, अपनी पैदावार और सनतकारी के बायस इर्द गिर्द के इलाकों में भी मशहूर शहर था। लेकिन उनकी इमारत, उनकी खूबियां जो दुनियावी तौर पर वो सोच रहे थे, खुदा के नजदीक वो क्या है? इंसानों के नजदीक स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ है, इंसानों के नजदीक मेयार मुख्तलिफ है, आज भी इसी तरह से है। इंसानों के मेयार पढ़ाई, दौलत, तरक्की ही खुशहाली की बुनियाद है, लेकिन खुदा के नजदीक मेयार मुख्तलिफ है। खुदा के नजदीक रूहानी तरक्की, रूहानी दौलत, रूहानी खजाना और रूहानी शिफा ये मेयार हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम कमबख्त, यानी वो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझती हैं। यीशु ने कहा कि तुम कमबख्त, खार, गरीब, अंधा और नंगा है। यानी अंधा क्योंकि वहां पर आंखों के लिए दवाई बनती थी, वो दूसरे शहरों में जाती थी, लेकिन यीशु कहते हैं नंगा है। वहां पर कपड़ा बहुत अच्छा बनता था, यीशु कहते अंधा है। वहां पर कपड़ा बहुत अच्छा था, यीशु कहते हैं तू नंगा है। वहां बड़ी इमारत थी, यीशु कहते हैं तू गरीब है, मोहताज है और कमबख्त है। खुदा के मेयार और इंसानों के मेयार मुख्तलिफ हैं। और फिर यीशु ने कहा कि तू नीम गर्म है, और इसके लिए भी जो सर्द गर्म और नीम गर्म की इस्तिलाह यीशु ने इस्तेमाल की, ये भी वहां के हालात के मुताबिक थी। लुदीकिया में पानी की कमी थी और लुदीकिया के इलाके को पानी, हेरापुलस एक ऊंचा शहर है जहां से नीचे पाइप के जरिए लाया जाता था, और वहां पर गर्म पानी के चश्मे थे। और गर्म पानी के चश्मों से जब पानी निकलकर नीचे आता था शहर में, तो उसका मजा नीम गर्म और उसके अलावा बदमजा हो चुका होता था, जिसकी वजह से यीशु ने कहा कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं, और वो पीने के काबिल नहीं रहता था। हमने जब मुकाशवा की किताब की सीरीज की तो उस वक्त हमने डॉक्टर कैसर जूलियस साहब से वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से पानी हेरापुलस शहर से नीचे लुदीकिया में आता था, और वहां पर गर्म पानी के चश्मों से नीचे आते आते दूसरे शहर तक पानी का मजा और पानी की टेम्परेचर जो है, पानी का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ हो जाता था और लोगों के पीने के काबिल नहीं रहता था। वॉमिट आने की तरह का मजा था कि उल्टी या मतली आ जाए। तो उन्हीं हालात को जो कि लुदीकिया की कलीसिया में थे,
उन्हीं हालात को यस्सु ने उन्हें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि तू ना गर्म है ना सर्द है। जहां से पानी निकल रहा था वहां पर गर्म है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते नीम गर्म और बदमजा हो रहा है। यानी ये लोग जो मसीही कहलाते थे, खुशहाल थे, खुदावंद से दूर हो चुके थे। जिस तरह गर्म पानी का चश्मा जहां से निकल रहा था वहां पर गर्म है, लेकिन लुदीकिया पहुंचते पहुंचते सेंटर से जहां से निकल रहा है वहां से पहुंचते पहुंचते बदमजा हो चुका है। इसी तरह कलीसिया, खुदा के लोग जब खुदावंद यीशु मसीह से दूर होते जाते हैं तो इसी तरह से वो नीम गर्म होते जाते हैं, बेमजा होते जाते हैं। नमक की तरह का मजा नहीं रहता, वो बेमजा और बदमजा होते हैं, खुदावंद से दूर होते जाते हैं। और आज की कलीसिया पर खास तौर पर, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि हमने मुख्तलिफ मजमूनों का इंतखाब किया है ताकि हम मुख्तलिफ मजमूनों पर सीख सकें, तो आज हम नीम गर्म कलीसिया के हवाले से सीखेंगे। जो लदीकिया की कलीसिया है, ये नीम गर्म कलीसिया के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बताई गई है। और आज की आलमगीर कलीसिया, आज की पाकिस्तानी कौमी कलीसिया और हम में से हर एक के लिए लुदीकिया की कलीसिया एक मॉडल है कि हम इस कलीसिया को सामने रखते हुए अपने आप को जांच सकें कि खुदा के मेयार क्या हैं और इंसानों के मेयार क्या हैं। आज की कलीसिया बिल्कुल लुदीकिया की कलीसिया की तरह का मंजर पेश कर रही है। हम ईमानदार कहलाते हैं, हम मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह के नाम से कहलाते हैं, लोग हमें मसीही कहकर पुकारते हैं और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो निजात दहिंदा है, जिसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। लेकिन उसके बावजूद खूबियों के एतबार से हम नीम गर्म कलीसिया है। पाकिस्तानी कलीसिया, दुनिया में कायम कलीसियाएं आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने के बजाय या सर्द होने के बजाय नीम गर्म कलीसियाएं हो रही हैं। यानी वो कलीसियाएं भी कहलाती हैं, वो मसीही भी कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ईमान तकसीम है। वो खुदावंद की भी खिदमत करना चाहते हैं, खुदा के साथ भी वफादार रहना चाहते हैं और दुनियावी रवायात को भी पूरा करना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तानी कलीसिया में भी बहुत सी कलीसियाएं इस खामी का शिकार हैं कि हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, इंसानों को भी राजी करना चाहते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 5-6 बाब में हमें खास तौर पर इसी बारे में तालीम दी गई है। 6 बाब और 24 में लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। हम चाहते हैं दोनों काम हो जाएं। हमें से बहुत से लोग खुदा के पास भी रहना चाहते हैं, जादूगरों के पास भी जाना चाहते हैं, दम करने वालों के पास भी चले जाते हैं। वो भी सियाने ने उन्ना कोई टोट जाना कोई गल। अक्सर लोग ये कहते हैं हम 2 मालिकों की खिदमत करना चाहते हैं। हम दुनिया के कामों के साथ भी चलना चाहते हैं, दुनियावी आसाइशों के साथ भी चलना चाहते हैं, दुनिया की हर एक ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहते हैं और खुदा को भी खुश करना चाहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हमारी ये अमली जिंदगी का तजुर्बा है कि हम 2 बॉसेस जो हैं उनको खुश नहीं रख सकते। एक वक्त में एक बॉस ही खुश हो सकता है। ये हमारा दुनियावी जिंदगी का तजुर्बा है। इसी तरह से अगर हम खुदा को अपना मालिक बनाना चाहते हैं और उसके साथ ये सोचें कि शैतान को भी साथ साथ खुश करते जाएं, या शैतान के लोगों को भी खुश करते जाएं, या दुनियावी बातों को भी पूरा करते जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। हमें किसी एक को ही खुश करने के लिए हम सलाहियत और अहलियत रखते हैं और किसी एक को ही खुश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लुदीकिया की कलीसिया को यीशु ने उनकी इस खामी के सबब से इल्जाम और दे इल्जाम ठहराया कि तू नीम गर्म है, काश के तू सर्द होता या गर्म होता। यानी या तो खुदावंद यीशु मसीह कहे काश तू दूर ही चला जाता,
या अगर तू मेरे पास है तो फिर गर्म होता। दरमियानी रास्ता नहीं है। मसीही जिंदगी दरमियानी रास्ता नहीं बताती। मसीही जिंदगी एक मंजिल की तरफ लेकर जाने का रास्ता बताती है, और वो मंजिल खुदा की बादशाही है। या तो हम खुदा की बादशाही की तरफ जा सकते हैं, या फिर खुदा की बादशाही से दूर जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि दरमियान में चलते जाए, खुदा को भी खुश करे और इंसानों को भी खुश करे। वो एक मुहावरा है ना कि दो कश्तियों का मुसाफिर जो है वो डूब जाता है। ये दुनियावी मुहावरा है, और खुदा का कलाम कहता है कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, लदीकिया की कलीसिया का पहली जो खामी थी, वो हमारे लिए एक चैलेंज है कि अगर आज हम भी लदीकिया की कलीसिया की तरह नींव गर्म कलीसिया हैं, तो हमें दोबारा से अपने ईमान को जांचने की जरूरत है। हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा को खुश करना है तो फिर सरगर्म होने की जरूरत है, और इंसानों को खुश करना है तो फिर सर्द रहने की जरूरत है। दरमियानी रास्ता नहीं है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम खुदा के साथ हैं, लेकिन खुदा ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदा बतौर कलीसिया हमें जानता है। खुदा बतौर मसीही ईमानदार इनफरादी तौर पर मुझे और आपको जानता है। इसलिए नींद गर्मी की हालत से निकलने की जरूरत है। खुदा की हजूरी में सरगर्म होने की जरूरत है। खुदा की ताबे फरमानी में सरगर्म होने की जरूरत है। फिर ही हम खुदावंद यीशु मसीह के मियार पर पूरा उतर सकते हैं। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ नसीहतें उन्हें की। 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह की सलाह है। मैं तुझे सलाह देता हूं। हम बड़े सलाह लेते हैं लोगों से, यार मशवरा तो दे जरा, तू सियाना है, तू तो जरा 10 से मिलो। मैं ऐसे नहीं तेरे को हर गल पूछना, तू मुझे हमेशा चंगा मशवरा देता है। अक्सर ऐसी बात हम करते हैं ना इंसानों से पूछने के लिए कि यार तू मैंने हमेशा चंगा मशवरा देता है, आज चंगा मशवरा दे। लदीकिया की कलीसिया को यीशु सलाह देता है, मैं तुझे सलाह देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का मशवरा, खुदावंद यीशु मसीह की नसीहत उन लोगों को जो अपने आप को दौलतमंद, ताकतवर, खुशहाल समझते थे, जो अपने आप को बड़ा तरक्की याफ्ता समझते थे। यीशु ने कहा, मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। पहली सलाह कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले। उन लोगों के पास बहुत सोना था, और कहा जाता है कि यहाँ जो यहूदी आबाद थे वो बड़ी मकदार में सोना हैकल में हदिये के लिए भेजा करते थे। यहाँ से लदीकिया से जो यहूदी थे वो हैकल में हदिये के लिए सोना भेजते थे, यानी वो बड़े अमीर थे, खुशहाल थे। मसीही भी बड़े खुशहाल थे। यहाँ पर जो गैर कौमों के लोग थे वो भी बड़े खुशहाल थे। लेकिन यीशु ने कहा, मुझसे तपाया हुआ सोना खरीद ले। यीशु से तपाया हुआ सोना क्या है? ईमान। मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में ईमान के बारे में जिक्र है। 7वीं आयत में लिखा है, ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत बेशकीमत है। अगर हमारा आजमाया हुआ ईमान मजबूत है तो पतरस कहता है कि वो आग से आजमाए हुए सोने से भी ज्यादा बेशकीमत है। सोना उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, खालिस सोना। वो आजकल वो कैरेट्स चलते हैं, 20 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, 22 कैरेट्स, 24 कैरेट्स, और कहा जाता है ये 24 जो है वो खालिस है, वो बड़ा सॉफ्ट है जी, बड़ा नरम होता है, ये खालिस होने की पहचान है। ये सोना बड़ा कीमती है, ये महंगा है। लेकिन खुदा का कलाम एक और बेशकीमत सोने की बात करता है जो खुदावंद यीशु मसीह से हमें मिलता है। वो बेशकीमत सोना हमारा ईमान है। और मुकद्दस पत्रस ने कहा कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए सोने से भी बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। दुनिया में गोल्ड इज्जत है। खातीन गोल्ड के बारे में जानती हैं इसकी क्या अहमियत है, और कितनी अहमियत के साथ उतरे ख्याल के साथ उसको संभाल कर रखती हैं। अगर सोना गुम हो जाए तो खातीन के लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। आप लोग जानते हैं, हम लोग घरों में हमें पता है
कि अगर सोने की कोई चीज़ पे ज्वेलरी आगे पीछे हो जाए तो खातून परेशान हो जाती है। उसकी कीमत, उसका कीमती होना खातून के लिए बड़ा अहम है। लेकिन पतरस कहता है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान आग से आजमाए हुए सोने से भी बेशकीमत है और यीशु के ज़हूर के वक्त इज्जत, जलाल और तारीफ का बायस ठहरेगा। क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त जो बेशकीमत चीज़ है वो सोना नहीं है, वो हमारा ईमान है। वही खुदावंद के ज़हूर के वक्त बेशकीमत, तारीफ और जलाल का बायस होगा। दूसरा मशवरा उसने दिया यीशु ने कि सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़हर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। वो लोग कपड़े की प्रोडक्शन के लिए मशहूर हैं और उन्हीं कपड़े की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही पूरी दुनिया में मशहूर है। यीशु कहता है कि तू नंगा है। ये नंगापन गुनाह को जाहिर करता है। खुदा ने आदम और हव्वा के नंगेपन को ढांपने के लिए उन्हें चमड़े का लिबास पहनाया और उनके नंगेपन को ढांका, उनकी शर्म को ढांका। पुराने अहदनामे में नंगापन शदीद जिल्लत का बायस समझा जाता था और दुश्मन जब दूसरे मुल्क पर हमला करते थे तो अगर दूसरे दुश्मनों के सिपाहियों को या शाही खानदान के लोगों को नंगा कर दिया जाता था तो वो उनके लिए शदीद जिल्लत का बायस था। और पुराने अहदनामे में हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें दुश्मनों को इसी हालत में जिल्लत का बायस बनाया गया है। लेकिन रूहानी तौर पर गुनाह खुदा के नजदीक नंगेपन की अलामत है और उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से रास्तबाजी के लिबास का वादा यशायाह की किताब में मिलता है। यशायाह की किताब और उसके 61वें बाब की 10वीं आयत में खुदा लिबास पहनाता है। दुनियावी लिबास हमारे जिस्म को ढांप सकते हैं लेकिन हमारे गुनाह जो हैं वो खुदा को नजर आते हैं। हमारा जिस्म जो है वो तो दुनियावी लिबास से ढका जा सकता है लेकिन हमारे रूहानी गुनाह, रूहानी नंगापन खुदा को नजर आ रहा है। उसको ढांकने के लिए खुदा की तरफ से रास्तबाजी के लिबास की जरूरत है। हम अच्छे से अच्छा लिबास पहन सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे लिबास से लोगों को खूबसूरत नजर आ सकते हैं, लेकिन रास्तबाजी का लिबास यीशु के वसीले से खुदा से मिलता है। यशायाह की किताब उसका 61वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को रास्ता करते हैं और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। रास्तबाजी का लिबास पहनने की ईमानदारों को जरूरत है। दुनियावी तौर पर जितने भी अच्छे लिबास पहन लें, यीशु की रास्तबाजी को अगर हमने नहीं पहना तो हम लुदीकिया की कलीसिया की तरह है, नीम गर्म कलीसिया हैं। फिर उसके बाद और सलाह दी कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तो बीना हो जाए। वहां पर आंखों को लगाने के लिए दवाई बनाई जाती थी और दुनिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन यीशु कहते हैं मुझसे दवाई आंखों में लगाने के लिए ताकि रूहानी आंखें खुल जाएं, रूहानी तौर पर बीना हो जाए, खुदा को देख सके, खुदा के साथ अपने ताल्लुक को देख सके, रूहानी तौर पर खुदा की मर्जी को जान सके। हमारी आंखें बाज़-औक़ात रूहानी तौर पर खुदा की मर्जी को जानने से कासर होती हैं। हम अपनी आंखों के लिए बड़ा एहतियात करते हैं, आंखों का ख्याल रखते हैं और आंख को अपने जिस्म का एक अहम हिस्सा भी जानते हैं और नाजुक हिस्सा भी समझा जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद बाज़-औक़ात कलीसियाएं रूहानी तौर पर अंधी होती हैं, यानी वो खुदा की मर्जी को देखने से आ रही हैं, खुदा के कलाम को देखने से आ रही हैं, खुदा की मर्जी को जानने और उनको सुनने से आ रही हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए, यानी तेरी रूहानी आंखें खुल जाएं। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें एक वादा भी दिया कि जो उसकी बात को सुनेगा, उसकी सलाह को सुन लेगा, उसके लिए वादा क्या है, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये एक मुख्तलिफ माहौल पेश किया गया है। अगर मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के उसके 6वें बाब में देखें, लिखा है
खटखटाओ, दावत है कि तुम खटखटाओ, हमारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु ही ऑफर कर रहा है, मैं खटखटाता हूँ, और जो मेरी आवाज सुनेगा, सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये रफाकत की ईस्टर्न ट्रेडिशन है, मशरकी रवायत है, खाना खाना। मशरक में खाना खाना जो है ना, साथ रफाकत रखना, वो बड़ा अहम समझा जाता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, पारी साहब आए और आपको हमें खाना खिलाना है, तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, खा लेंगे। यानी ये एक मशरक की रवायत है कि जो रफाकत है उसका अहम हिस्सा खाना खाना है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस रफाकत को एक गहरे तौर पर, एक गहरे ताल्लुक के तौर पर बयान किया है, और बिल्कुल मुख्तलिफ है उस कॉल से जो मुकद्दस मत्ती की इंजील के 6 बाब में है कि मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन यहां पर यीशु अपने आप को बाहर रख रहे हैं कि मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं। यानी लुदीकिया की कलीसिया ने यीशु को बाहर किया हुआ है। यीशु बाहर है और खुद अंदर है। और अक्सर कलीसियाओं में ऐसा होता है कि सारे काम हो रहे होते हैं, सारी बातें हो रही होती हैं, सारे बड़े हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं लोगों की, लेकिन यीशु को हमने बाहर निकाला होता है। अगर कलीसिया में यीशु की मौजूदगी नहीं है तो वो कलीसिया यीशु का बदन, यीशु का घराना, यीशु की कलीसिया नहीं है। कलीसिया में यीशु का होना जरूरी है, और वो बाहर से खटखटा है, उसको बाहर रखा हुआ है। वो कह रहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। यीशु की मोहब्बत देखें तो वो फिर भी खटखटा रहा है। He's waiting to the opening of the door, कि वो दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई बंदा कोई चीज लेकर जाए और आगे से दरवाजा ना खुले तो कहते चलो बड़ा असीं शह लैके आए हैं, नहीं खोलता तो ना खोले, तो बाद में बताते और तुझे खोल लेता तो तेरा बड़ा फायदा होना सा। बाद में बताते हैं मैं तेरे लिए बड़ी एक चंगी शह ले आया सा। तो फिर वो जो खोलने वाला होता है, जिसने नहीं खोला था, वो कहता हुए यार ज़ाया हो गया था, मौका ज़ाया हो गया। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम बतौर मसीही उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को खो देते हैं जब यीशु दरवाज़ा खटखटा रहा। यीशु ने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। और लदीकिया की कलीसिया की खामियों में ये उनके लिए बहुत ही खूबसूरत वादा था कि इतनी खामियों के बावजूद कोई भी खूबी नहीं है। बाकी कलीसियाएं हैं उनमें कोई ना कोई खूबी बयान की गई है, और 2 में तो सारी खूबियां हैं, लेकिन 4 में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं। इस कलीसिया में कोई भी खूबी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यीशु की मोहब्बत देखें कि वो फिर भी इंतजार कर रहा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। उसकी मोहब्बत इसी तरह से गुनाहगारों के लिए है। वो लोग जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, वो लोग जो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते, वो लोग जो 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं, वो लोग जो 2 मालिकों की खिदमत करना चाहते हैं कि खुदा को भी खुश रखें, इंसानों को भी खुश रखें, शैतान को भी खुश रखें, उसकी बात भी माने, उसके लोगों के पास भी जाएं, जादूगरों के पास भी जाएं और खुदा के लोगों के पास भी जाएं, दोनों को खुश रखें। उनके लिए यीशु इंतजार कर रहा है। देख मैं खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं, जो मेरी आवाज सुनकर खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यानी रफाकत ऐसी है कि इकट्ठे हो गए। और उसके बाद एक और वादा किया, पहले रफाकत का वादा है, फिर 21वें आयत में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। शराकत है बादशाही में। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को अपने साथ बादशाही में शरीक करेगा। और इसी तरह का वादा थवातीरा की कलीसिया को भी किया। थवातीरा की कलीसिया में भी खामियां थी, उनके साथ भी ये वादा किया। 2 बाब और 26वीं आयत में, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा, वो लोहे के असास उन पर हुकूमत करेगा।
یعنی جس طرح یسوع بادشاہی کے لیے آئے گا، بادشاہی کرے گا، اپنی بادشاہی میں یسوع ان لوگوں کو شریک کرے گا جو سرگرم مسیحی ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے۔ یہ لودیکیا کی کلیسیا کے حالات میرے عزیزوں ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا ایک آئینے کی طرح ہمیں اپنی صورت دیکھنے کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم سرگرم ہیں یا سرد ہیں یا نیم گرم ہیں۔ اور میرا اپنے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ ہم نیم گرم ہیں، ہمیں سرگرم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر روحانی برکت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، راست بازی کا لباس نہیں ہے، روحانی اندھا پن ختم نہیں ہے، تو یسوع کے نزدیک سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم کم وقت، خوار، غریب، محتاج، اندھے ہیں، ننگے ہیں۔ دنیا کے میں ہمارے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یسوع کے معیار کے مطابق ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یسوع کے معیار پر پورا کرنے کے لیے سرگرم ہونے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی صلاح یسوع نے لودیکیا کو دی، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ یہ لفظ خدا یسوع مسیح کی طرف سے دستک ہے، یہ کال ہے اس کی طرف سے، بلاہٹ ہے کہ سرگرم ہو اور توبہ کر، تاکہ حقیقی طور پر ہم خداوند کے نزدیک خوشحال، برکت والے اور اس کی بادشاہی میں شامل ہونے والے بن سکیں۔ آج ہم خداوند کی میز پر آنے والے ہیں اور ہمارے پاس موقع ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا کو ایک آئینے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تیار کہ ہم نیم گرم نہیں بلکہ سرگرم کلیسیا ہوں گے۔ ہم ایک زندہ کلیسیا اور گواہی دینے والی کلیسیا ہوں گے، توبہ کی ہوئی کلیسیا ہوں گے۔ کلیسیا میں نمبرز اہم نہیں ہیں، کلیسیا کی تعداد اہم نہیں ہے۔ کلیسیا اگر روحانی طور پر زندہ ہے، سرگرم ہے، تو وہی حقیقی کلیسیا ہے، اسی کے اندر مسیح ہے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی میز پر آنے سے پہلے اپنے اندر غور کریں، اپنی نیم گرمی کی حالت کو اپنی زندگی سے نکالیں، اس سے پہلے کہ خداوند ہمیں اپنے منہ سے نکال پھینکے، ہم اپنی زندگی سے نیم گرمی کی حالت کو نکالیں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم دو مالکوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں معاف کر، تو ہمیں بدل خداوند۔ خدا پاک رو تو ہمیں چھو، خدا پاک رو تو ہماری مدد کر تاکہ ہم سرگرم ہو سکیں، ہمارا ایمان تپایا ہوا ایمان ہو سکے، ہم راست بازی کے لباس کو پانا چاہتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہمیں راست بازی کا لباس ملے۔ خداوند تو ہماری مدد کر، ہم کمزور انسان ہیں، ہمیں توبہ کے لیے تیار کر، ہمیں اپنی خامیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار کر۔ خداوند تو ہمیں سے ہر ایک کو چھو اور نئی سوچ، نئی زندگی دے۔ جب ہم تیری میز پر آئیں تو یہاں سے ایک نئی زندگی کے ساتھ واپس جائیں، سرگرم ہو کر واپس جائیں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہدیے کے گیت سے پہلے ایک بپتسمے کی رسم ہے، ہم اس کو ادا کریں گے۔ عابد آ جائیں آگے، مائک دے دیں۔ سوال کروں گا اور آپ نے ان کا جواب مجھے ہمیں دینا ہے۔ کیا آپ خدا کو اپنا اور اپنی اولاد کا خدا مانتے ہیں؟
क्या आप संजीदगी से वादा करते हैं कि अगर खुदा आपको और आपकी औलाद को जिंदा रखे तो आप उन्हें खुदावंद की तालीम के मुवाफिक तरबियत देंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि आप उन्हें निजात हिदा की तरफ फेरेंगे और अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि अपने ख़ानदान में बराबर खुदा की बंदगी करेंगे और अपने बच्चों के सामने अपनी दीनदारी का नमूना दिखाएंगे? क्या आप ये वादा करते हैं कि आप अपने बच्चे की निजात के लिए हर मुमकिन वसीला इस्तेमाल करेंगे? आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस पानी की तकदीस के लिए दुआ करें और इसके साथ ही जो वादे इस घराने ने खुदा की हजूरी में ईमानदारों की मौजूदगी में अपने बच्चे की मसीही तरबियत के हवाले से किए हैं, दुआ करेंगे खुदा अपने वादों में कायम रखे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस घराने को औलाद की बरकत बख्शी और ये भी मुमकिन किया कि आज वो तेरी हजूरी में आए और ईमानदारों की मौजूदगी में ये इकरार कर सकें कि वो अपने बच्चे को कलीसिया में शामिल करके उन वादों का वारस ठहराते हैं जो खुदावंद तूने अपनी कलीसिया के लिए रखे हैं। और इसी तरह से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि उन्होंने तेरी हजूरी में अपने बच्चे की मसीही तरबियत के लिए वादे किए हैं। तेरे पाक रूह की मदद इन दोनों के लिए मांगते हैं ताकि तेरे पाक रूह की मदद के वसीले से ये इन वादों में हमेशा कायम रहे और अपने बच्चे की मसीही तरबियत के लिए एक दीनदार और मजबूत ईमानदार वालिदैन का नमूना पेश कर सकें। खुदावंद इस पानी पर भी तेरी बरकत मांगते हैं तो इसकी तकदीस कर, उसे पाक ठहरा, ताकि इसके वसीले से जब बपतिस्मे की रस्म अदा की जाए तो इस बपतिस्मे की रस्म के वसीले से हमारा बेटा भी उन तमाम बरकतों का वारिस ठहरे जो तूने कलीसिया के लिए दुनिया में रखे हैं। सी यीशु के नाम से आमीन। यमन आफ्ताब, उसके खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद तुझे अपने घराने के लिए और हमारी कलीसिया के लिए बरकत, खुशी, इज्जत का बायस बनाए। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 207 गाएंगे, 207, जय जय यीशु, जय जय यीशु। और इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। जय
तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम इकट्ठे मिलकर यहाँ पर तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल देने के लिए तेरी प्रस्तुत कर सके। जितना वक्त खुदावंद हमने तेरी हजूरी में गुजारा है, हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाए हैं। खुदावंद तुन्हें कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बरकत और खुशहाली बख्श दे। ईमान की मजबूती दिल में जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बना। और खुदावंद दुआ करते हैं इस हफ्ते में हमारी हिफाजत कर, हमें हादसात, बीमारियों, परेशानियों से महफूज रख। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जिन तलबा और तालबात ने एग्जाम्स दिए हैं, खुदावंद उन्हें अच्छे नंबरों में कामयाब कर। और खास तौर पर खुदावंद हम सभी मिलकर की भाई के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने बेटे को छू और शिफा दे और उठा खड़ा कर। खुदावंद हम सभी अपने लिए, अपने खानदानों के लिए और अपनी पूरी कलीसिया के लिए बरकत मांगते हैं। और इसी तरह खुदावंद हमें भी तेरी मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो हमारी मदद और रहनुमाई कर, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें मेरी मदद के लिए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस राह पर पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो आए। इस वास्ते जो भी नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ खुदावंद, अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हमें और हम उसमें हमेशा बसें। खुदावंद इस तरह से रोटी और शीरे के लिए दुआ करते हैं तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी तकदीस कर, ताकि इसको खाने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का इजहार हमारी ज़िंदगी से हो सके और इसको खाने के बाद हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करके यहाँ से वापस लौट सकें। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, तुम भी मेरी याद में इसी तरह से किया करो। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ।
के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। Yeah.
जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जवान की जिंदगी के लिए दूंगा तो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। ये बातें यीशु ने कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कही। कादर मुतलक और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं। तू मेहर करके हमें जो पाक राज़ में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनाजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम अपना साबित करता है
और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदल में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत गले हुए अज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेवहा मौत और अज़ियत के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नेक अमाल तूने पेशकर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करे। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुद्स के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदा आसमानी बादशाह, खुदा का मुल्क बाप, हम तेरी हमद करते और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते और तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, और तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के बहने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब खड़े हों और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सोने से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। ऐलान है, मैं अक्सर पहले भी दरख्वास्त करता हूँ कि जब हमारे चर्च में आखिरी गीत होता है तो उस वक्त बाहर फौरन न जाया करें, कुछ देर इंतज़ार किया करें, गीत में शामिल हुआ करें हमारे साथ, और पहले मुझे जाने दें, फिर उसके बाद आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आएँ। हम अक्सर जब जैसी दुआ ख़त्म होती है तो फ़ौरन उठ के सभी चले जाते हैं। जब गीत शुरू होता है, गीत के शुरू होने का और गीत में शामिल होने का इंतज़ार किया करें साथ।